والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ میکسیکو میں تیل کی پائپ لائن میں دھماکے سے ہلاکتوں کی تعداد 67 ہو گئی۔ صہیونی ریاستی جبر، فلسطینی خاندان اپنے ہاتھوں مکان کی مسماری پر مجبور۔ ادویات کا فقدان، غزہ کے 5 اسپتالوں کی بندش کا خطرہ۔ ترکی کی طرف سے میکسیکو کے لیے تعزیتی پیغام۔ افغانستان گورنر کے کانوائے پر بم حملہ، 8 محافظ ہلاک۔ امریکہ خواتین مارچ، صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج۔ مولانا کے مقبرے کی مرمت کے دوران 500 سالہ نقش کاری سے سامنا۔ پولیس وردی پہنے ڈاکوؤں نے دبئی سے آنے والے تاجر کو لوٹ لیا۔ موبائل چھین کر اصل مالک کو ہی فروخت کر دیا۔ ترکی کے اخبارات سے کچھ اہم ترین جھلکیاں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، آپ نے قومی سطح کی 10 خبریں دیکھ لی ہوں گی۔ جن لوگوں نے دیکھا نہیں ہے وہ دیکھ لیں، وہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اسی طرح آج کا تازہ پرائم ٹائم بھی اپلوڈ ہو چکا ہے اور ایک اہم ترین خصوصی رپورٹ بھی شائع ہو چکی ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ عالمی اسلام اور عالمی خبروں کا الگ ویڈیو اپلوڈ ہوگا اور تازہ ترین قومی خبروں کا الگ ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی اگر شام تک کچھ اہم ترین خبریں موصول ہوتی ہیں تو اس کی بھی کچھ الگ ویڈیوز آپ کے سامنے پہنچانے کی ہم لوگ وقتاً فوقتاً کوشش کریں گے۔ یہ ہم نے کچھ تبدیلیاں لائی ہیں، امید ہے کہ آپ کو یہ تبدیلی پسند آئے گی اور اس سلسلے میں آپ ہمیں کمنٹس باکس میں کمنٹ بھی کریں گے۔ لہٰذا اب جو میں خبریں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ نیشنل اور انٹرنیشنل ہوگی، عالمی اسلام کی اور گلف کی کچھ اہم ترین خبریں آپ لوگوں کے سامنے جو چنیدہ ہوں گی اور 10 اہم ترین ہوں گی وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ناظرین میں آپ سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ ناظرین چلیے چلتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ پہلی خبر میکسیکو سے ہے۔ میکسیکو میں جمعہ کی شام تیل کی ایک پائپ لائن میں دھماکے کے بعد آگ لگنے سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 67 ہو گئی ہے اور 76 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ میکسیکو کی وسطی ریاست ہائیڈلگو میں واقع قصبے تلموہلیلپان میں پیش آیا تھا۔ اس وقت مقامی لوگوں کی بڑی تعداد تیل کی ایک بڑی پائپ لائن سے تیل چرا کر لے جا رہی تھی۔ اس دوران میں اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پائپ لائن کو آگ لگ گئی، جس سے 10 افراد زندہ جل گئے اور ان کی لاشیں ناقابل شناخت ہو گئی ہیں۔ اس واقعے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ہیں جو ناقابل دید ہیں۔ دھماکے کے بعد فوج نے جائے وقوع کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ حکام نے آگ پر قابو پا لیا ہے۔ وہاں ہر طرف مرنے والوں کے جلے ہوئے جوتے اور برتن پڑے تھے۔ مقامی لوگ ان برتنوں، بالٹیوں اور ڈرموں میں تیل لینے کے لیے آئے تھے۔ ریاست ہائیڈلگو کے گورنر عمر فیاض نے ہفتے کے روز میکسیکو کے صدر آندرس مینوئل لوپیز اوبراڈور کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں تیل کی پائپ لائن میں دھماکے سے 67 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ اب خبر فلسطین کے ترعان سے۔ فلسطین کے مقبوضہ غرب اردن کے نواحی علاقے ترعان میں صہیونی ریاستی جبر کے تحت فلسطینی خاندان کو اپنے ہاتھوں مکان مسمار کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ مرکزی اطلاعات فلسطین کے مطابق صہیونی فوج نے الصفوری خاندان کو تیار شدہ مکان مسمار کرنے پر مجبور کر دیا۔ متاثرہ فلسطینی خاندان کا کہنا ہے کہ صہیونی حکام نے ان کا مکان مسمار کرنے پر مجبور کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے۔ مکان میں خاتون اور اس کے 4 بچے رہائش پذیر تھے۔ انہیں بے دخل کرنے کے بعد مکان کی مسماری کا حکم دیا گیا ہے۔ صہیونی حکام کی طرف سے مکان کی مسماری کے لیے صہیونی انتظامیہ کی مدد لینے کا کہا گیا۔ متاثرہ خاندان کی 45 سالہ صبا صفوری نے کہا کہ وہ 20 سال سے اس مکان میں رہائش پذیر تھے۔ مکان کسی سے چھینی گئی اراضی پر نہیں بلکہ ان کی آباء و اجداد کی زمین پر بنایا گیا تھا۔ اب خبر غزہ کی پٹی سے۔ فلسطینی وزارت صحت نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کی پٹی کو طبی سہولیات کی فراہمی بند ہونے اور ادویات کی قلت کے باعث علاقے کے 5 اسپتالوں میں طبی سروس روکنے کا خدشہ ہے۔ غزہ میں وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے ہفتے کے روز ایک بیان میں اپیل کی کہ امداد دینے والے ممالک غزہ کی پٹی کو فوری طبی سہولیات فراہم کریں۔ اگر غزہ کی پٹی کے اسپتالوں کو فوری طبی سہولیات مہیا نہیں کی جاتی تو غزہ کے نصر الاطفال، اطرت سیلی
चिल्ड्रन अस्पताल, मरकज बराए इलाज अमराज चशम, साइकोलॉजिकल मरकज और अबू यूसुफ अन-नज्जार अस्पताल अपनी सर्विसेज बंद करने पर मजबूर हो सकते हैं। इधर शिमाली गजा के बैत कानून अस्पताल ने अपनी तिब्बी सर्विस रोक दी है, जिसके बायस सैकड़ों मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अस्पताल की बंदिश की वजह बिजली का मुसलसल ब्रेकडाउन भी है। अस्पताल को ईंधन की सप्लाई मुअत्तल होने के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब खबर तुर्की से। तुर्की ने मेक्सिको के शहर तलाहियो लेल्पेन में कसीर अफराद के अमवात का सबब बनने वाले पेट्रोल पाइपलाइन धमाके पर ताज़ियती पैगाम जारी किया है। वज़ारत खारिजा की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि पेट्रोल पाइपलाइन में धमाके के नतीजे में कसीर तादाद में हलाकतों और इंसानों के जख्मी होने पर हमें अफसोस है। बयान में कहा गया कि हम हादसे में हलाक होने वालों की कुंबों, मेक्सिको के आवाम और आवाम से इजहार ताज़ियत करते हैं और जख्मियों की फौरी सेहतयाबी के मुतमन्नी हैं। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की सूबे लोगर के गवर्नर मोहम्मद अनवर इसहाक जई के कानवाई पर बम हमले में हिफाजती दस्ते के 8 मुहाफिज हलाक हो गए हैं। लोगर पुलिस डायरेक्टोरेट के तर्जुमान शाहपुर अहमद जई ने अखबारी नुमाइंदों के लिए जारी करदा बयान में कहा है कि हमलावरों ने बम से मुसल्लह गाड़ी के साथ सफेद संग इलाके में काबुल से लोगर तक जाते हुए गवर्नर इसहाक जई के कानवाई को निशाना बनाया। कानवाई में गवर्नर खुद भी मौजूद थे। तर्जुमान शाहपुर अहमद जई के मुताबिक हमले में गवर्नर इसहाक जई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ताहम उनके मुहाफिज दस्ते के 8 मुहाफिज हलाक हो चुके हैं। अलावा अजीज 10 अफराद जख्मी भी हुए। हमले की जिम्मेदारी तालिबान की जानिब से कबूल किए जाने का दावा किया गया है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका में इस साल तीसरी दफा और हजारों अफराद की शिरकत से मुनाकिदा खवातीन मार्च के सिलसिले में वाशिंगटन और न्यूयॉर्क समेत मुल्क भर के मुजाहिरों में सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ एहतिजाज किया गया है। दारुल हुकूमत वाशिंगटन में सुबह सवेरे से मुजाहिरीन फ्रीडम प्लाजा के अतराफ में आना शुरू हुए और यहां से प्ले कार्डों और नारों के साथ ट्रंप इंटरनेशनल होटल की तरफ मार्च किया। मुजाहिरीन ने यहां ट्रंप इंतजामिया की मुहाजिरीन मैक्सिको की सरहद पर दीवार और जिनसी तफरीक से मुतालिक पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगाए और मार्च को जारी रखा। वाशिंगटन के मुजाहरे के साथ अमरीकी मुस्लिम सिविल सोसाइटियों ने भी ताउन किया है। न्यूयॉर्क की मार्च में 6 नवंबर की ज़िमनी इंतखाबात में मुंतखब होकर नौजवान तरीन पार्लिमानी रुकन का उन्वान हासिल करने वाली डेमोक्रेट मेंबर अलेक्जेंड्रिया ओकासिया कोर्टिज ने भी शिरकत की। अब खबर मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मकबरे और उसके साथ मुल्हिका मौलाना अजायब घर के ताल्लुक से है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मकबरे और उसके साथ मुल्हिका मौलाना अजायब घर में जारी मरम्मत के काम के दौरान कलमकारी, नक्श और सजावट के काम की दरियाफ्त हुई है। कलमकारी, नक्श और सजावट का एक काम मौलाना के मकबरे के ऊपर गुंबदे हजरा के अंदरूनी हिस्से से दरियाफ्त हुआ, जिसे उस्मानी बादशाह बायजीद दुव्वम ने करवाया था। अजायब घर के सबसे ज्यादा मरकज तवज्जो बनने वाले हिस्सों में से एक गुंबद है, जिसकी मरम्मत और देखभाल का काम 16 जून से शुरू करवाया गया और अभी तक निहायत मोहताज शक्ल में जारी है। काम का 80% हिस्सा मुकम्मल हो गया और तवक्को है कि मार्च के वस्त तक मरम्मत और देखभाल का एक काम मुकम्मल हो जाएगा। मज़कूरा गुंबद हजरा के अंदरूनी हिस्से की मरम्मत के दौरान माहिरीन को एक सरप्राइज का सामना हुआ। गुंबद के अंदरूनी हिस्से में कलमकारी से खत्ताती के नमूने, नक्शकारी और सजावटी काम सामने आया, जिसे बाद में करवाए गए काम ने ढांप दिया था। माहिरीन के मुताबिक ये सजावटी काम तकरीबन 500 साल पुराना है। अब खबर कराची से है। कराची में पुलिस जैसी वर्दियां पहने 4 डाकुओं ने दुबई से कराची पहुंचने वाले ताजिर को लूट लिया है। पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक मलेर के करीब दुबई से आने वाले ताजिर को 4 डाकुओं ने लूटा। डाकू पुलिस जैसी वर्दियां पहने हुए थे। पुलिस के मुताबिक वारदात में जाली नंबर प्लेट वाली पुलिस कार इस्तेमाल की गई। कार पर BBP 440 नंबर की जाली प्लेट थी। पुलिस के मुताबिक मेटारी का रिहायशी एजाज दुबई से आए कजिन को एयरपोर्ट से कार में लेकर निकला था। डाकुओं ने पुलिस एहलकार बनकर रोका। 4 लाख रुपए की मुल्की व गैर मुल्की करेंसी लूट कर भाग गए। जाली एहलकारों के खिलाफ वारदात का मुकदमा मकामी थाने में दर्ज कर लिया गया है। अब खबर फिलिपाइन से। फिलिपाइन में एक शख्स का राह चलते हुए मोबाइल फोन छीन लिया गया। मोबाइल फोन के मालिक की बेटी ने इंतहाई दिलचस्प अंदाज में छीना हुआ मोबाइल वापस हासिल कर लिया है। फिलिपाइन टाइम्स के मुताबिक फोन का मालिक रोड पर जा रहा था कि उससे मोबाइल फोन छीन लिया गया। मज़कूरा शख्स ने घर पहुंचकर बीवी को मोबाइल फोन छीनने की रुदात सुनाई तो बीवी ने बेटी को इस बारे में आगाह किया।
बेटी ने मोबाइल फोन एप्लीकेशन की मदद से मोबाइल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही क्योंकि चोर ने मोबाइल फोन छीनने के बाद उसका तमाम डेटा डिलीट करके उसे रीसेट कर दिया था, जिससे उसका ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ हो गया। माँ बेटी अभी ये सोच रहे थे कि वो अपने मोबाइल फोन से हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो गए हैं कि अचानक उन्हें डकैत की जानिब से अपने मोबाइल फोन को इंटरनेट पर बेचने का इश्तिहार नजर आया। माँ बेटी ने खरीदार बनकर डकैत से मिलने का फैसला किया और पुलिस को तमाम वाक़े की इत्तला दे दी। पुलिस ने उनकी तस्दीक के बाद डकैत को पकड़ लिया और उससे मोबाइल फोन छीनने के बारे में पूछा तो उसने कहा कि फोन उसे कहीं और से मिला था और उसने छीनने से इनकार किया। डकैत की वालिदा की जानिब से कानूनी कार्रवाई न करने की दरखास्त पर मुलजिम को छोड़ दिया गया है। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि मालिक को महज इश्तिहार देखकर कैसे अंदाजा हुआ कि ये उसी का मोबाइल फोन है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के कुछ अहम तरीन अखबार से। रोजनामा वतन मुत्तहिदा अमेरिका के साथ नए दौर में फ्री ट्रेड मुआहदे का हदफ, ये उन्वान देकर लिखता है कि खारिजा इक्तिसादी ताल्लुकात की कमेटी तुर्क अमरीकी बिजनेस काउंसिल के सदर महमद अली यालचन दा का कहना है कि सदर रजब तैयब एर्दोगान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चंद रोज बेशतर टेलीफोनिक मुलाकात में दोनों मुल्कों के बाहमी इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद आगे ले जाने पर जोर देना एक पुरमसरत पेशरफ्त है। 20 अरब डॉलर का बाहमी तिजारत हजम नाकाफी है। हमें खेल के उसूलों को बदलना होगा जिसका रास्ता फ्री ट्रेड माहदे से गुजरता है। रोजनामा यानी शफक हिफाजती इलाके के क़याम की सोच शामी शहरियों के लिए उम्मीद की किरण साबित हुई। उन्वान के तहत लिखता है कि शाम में दरियाए फुरात के मशरक़ी किनारे तश्कील दिए जाने की मनसूबाबंदी होने वाले सिक्योरिटी जोन ने अपने मुल्क से नकल मकानी करने पर मजबूर होने वाले लाखों शामी शहरियों में उम्मीद के जज्बात बेदार किए हैं। अपने मुल्क को वतन को लौटने के ख्वाब देखने वाले शामी शहरियों ने इस ज़िम्न में फिलफौर इक़दाम उठाए जाने की तमन्ना का इजहार किया है। तो कहा जाता है कि ये चीज़ 40 लाख शामी शहरियों की वतन वापसी में बारआवर साबित हो सकती है। रोजनामा स्टार तुर्की ज़रिए अजनास की पैदावार से हासिल करदा कौमी आमदनी में खित्ते यूरोप में सरे फहरिस्त जली सुर्खी लगाते हुए लिखता है कि तुर्की ऐवानहाय बाजार हिस्स के सदर रुफात हिसार जेक ओलो का कहना है कि तुर्की खेती बाड़ी व गल्लाबानी के शोबे में एक बुलंद सतह के इस्तेदाद का मालिक है। हम ज़राई कौमी आमदनी में पहले और दुनिया में 8वें नंबर पर हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की के इर्द गिर्द के इलाके में तकरीबन 2 अरब नफूस आबाद हैं। ये नफूस तकरीबन 500 अरब डॉलर की ज़राई खुर्दनी और गल्लाबानी की मसनूआत दरामद करती है। हमारे खित्ते में इस हवाले से एक वसी मंडी मौजूद है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो आलमी इस्लाम और आलमी और गल्फ न्यूज़ वगैरह से वाबस्ता थी। हमें उम्मीद है कि ये खबरें आपको पसंद आई होगी। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। कल इंशाल्लाह फिर आलमी इस्लाम की और दीगर खबरें लेकर आपसे हाजिरी होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।